everybody. After three successful sessions, we are back with the fourth one, Ayurveda for All, an endeavor to educate people about what Ayurveda is. We have discussed in the previous episodes about the Dinacharya, parts of Ritucharya in view of the current pandemic. इसके अलावा और आयुर्वेद में क्या है, हमारा एक एफर्ट है कि आपकी तरफ, कॉमन पीपल की तरफ, मासेस की तरफ, आम लोगों की तरफ आयुर्वेद क्या है वो अच्छी तरह से पहुंचे, कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे अपने रोजाना डे टू डे एक्टिविटीज में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. इनके अलावा ऋतुचार्य और दिनचार्य हमने पीछे एपिसोड्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अभी आगे वी विल बी डिस्कसिंग विद धारणीय अधारणीय वेगस, जो कि आयुर्वेद में इन डिटेल बताया गया है. What are धारणीय and अधारणीय वेगस? धारणीय वेगस other suppressible urges, वो urges जो हमें दबाने होते हैं, and there the अधारणीय वेगस जो कि 13 इन नंबर है. और वो क्या क्या है, वो इंक्लूड करते हैं the urge to urinate, excrete, breathe, निद्रा, sneeze. अभी आजकल के सिनेरियो में उसको फाइट करने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी भी बनानी है. ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं, हर एपिसोड में बोलते आ रहे हैं. अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ में भी है. और फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ बनाने के लिए ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है. इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वन डे. हमें सबको पता है, वी ऑल नो दैट द सीड्स ऑफ हेल्थ आर सोन फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसेप्शन, एंड इन टैंडम विद दैट वी हैव अमंगस्ट अस टुडे डॉक्टर सुजाता धनाजीराव Kadam, who is an MD PhD in Prasuti Tantra and Stree Rog and is a dean with the much acclaimed All India Institute of Ayurveda, New Delhi. Welcome, Dr. Sujata. Namaskar. Again, we've had several requests from our viewers to have a male doctor on our panel, so we are proud to welcome Dr. Amit Mishra today. Dr. Amit Mishra is a physician. Namaskar. Dr. Amit Mishra is a physician who has also done his PhD in yoga. He's been practicing Ayurveda since more than 2 decades now and has won accolades for his paper presentation at Howard Medical School, Boston on breast cancer, and is currently engaged in a year-long project on Ayurveda and diabetes. He will enlighten us further on yoga and its utility in different spheres. The third panelist on our show is Dr. Sumita Thermoplan. Welcome, Dr. Sumita. She is currently working as an in charge of the Ayurvedic department OPD at Civil Hospital Nongpori, Buribhoi district, Meghalaya. She has under her belt an MD degree in Kaya Chikitsa and a postgraduate diploma in public health management, and has a wide experience in dealing with public health issues. Between our 3 panelists today, we will try to address issues of Garbha Sanskar, some preventive measures for pregnant women, yoga in pregnancy and for enhancing immunity, and also health measures in view of the current pandemic and Dharaniya Vedas. हमारे साथ जुड़े रहिए, डिटेल्स में जाएंगे. और सबसे पहले हम डॉक्टर सुजाता करदम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले वो अपने व्यूज गर्भ संस्कार के बारे में बताएंगी. जैसे कि आपको एक जस्ट बैकड्रॉप दे देती हूँ, क्या है गर्भ संस्कार. जैसे कि आपको पता है, एक बच्चा 9 महीने अपने माँ के वूम में रहता है. So गर्भ संस्कार is the it serves as the blueprint of a man's journey in this world. And Dr. Sujata, please enlighten us further on this. Namaskar to all viewers. First of all, I thank you for inviting me, for sharing my views with all viewers. Yes, I will share definitely my experiences, practical experiences in this regard. गर्भ संस्कार, पहले तो ये शब्द आयुर्वेद का नहीं है, मतलब संस्कार ये शब्द आयुर्वेद का नहीं है. गर्भ संस्कार तो संस्कार शब्द जरूर है आयुर्वेद में, बट गर्भ संस्कार ये वर्ड कहीं इकट्ठा इन रिलेशन टू प्रेगनेंसी ऐसा कहीं भी नहीं है. गर्भाधान विधि, यस, गर्भाधान संस्कार इज देयर, गर्भाधान विधि इज देयर. और गर्भाधान विधि का इंटेंशन जो है वो ये है कि टू हैव अ हेल्दी प्रोजेनी. और हम लोग जैसे बोलते हैं आम भाषा में कि जिसका बीज अच्छा होगा तो उससे पेड़ भी बहुत अच्छा होगा एंड उसके फल भी बहुत अच्छे मिलेंगे. तो डेफिनेटली बीज अच्छा होना चाहिए, मतलब जिस बीज से आगे गर्भ आने वाला है तो वो बीज अगर अच्छे हो, उससे गर्भ की उत्पत्ति, बहुत अच्छे गर्भ की उत्पत्ति होगी. और पूरे 9 महीने अगर खान पान और मेंटल बिहेवियर अच्छे से रखे तो बच्चे पे खान पान के और बिहेवियर के अच्छे संस्कार हो जाएंगे.
और उसके बाद में 9 महीने के बाद में दैट कपल विल हैव अ गुड हेल्दी प्रोजेनी. दैट इज होल अबाउट द गर्भ संस्कार. बट ये अभी क्यों, मतलब इतना बढ़िया कंसेप्ट है आयुर्वेद का, लेकिन लोगों को उसके बारे में अभी अभी पता चला है. मतलब जब से गर्भ संस्कार ये वर्ड सारी जगह घूम रहा है, तब से लोगों को थोड़ा सा ये मतलब क्यूरियोसिटी है कि व्हाट इज दिस. तो ये एंशिएंट टाइम से है हमारे यहाँ, बट ये थोड़ा सा उपलब्ध, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इग्नोर्ड एरिया था, कि जो अभी हाईलाइट में आ गया है. क्योंकि हेल्थ, अभी हेल्दी प्रोजेनी इज अ प्राइम इशू. क्योंकि हम लोग अगर हेल्दी प्रजा उत्पन्न होती है तो डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर पे जो बर्डन है आजकल, और आजकल बहुत सारी चीजें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड बहुत सारी चीजें, डायबिटिक हब हो रहा है इंडिया, तो बहुत सारी चीजें हम लोग पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द गर्भ संस्कार. इसकी तैयारी जब एक कपल सोचता है कि यस वी कैन गो फॉर द प्रेगनेंसी, उससे शुरू हो जाती है. तो उसके लिए कुछ शोधन प्रोसीजर्स है. कम से कम 3 महीने पहले, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने या 6 महीने, ज्यादा अगर बहुत बढ़िया इफेक्ट हम लोग चाहते हैं तो 6 महीने पहले आप थोड़ा सा उसको प्लान करें. एंड यू शुड विजिट अ डॉक्टर. डॉक्टर विल एग्जामिन यू थॉरली. आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी से ली जाएगी उसमें, और हिस्ट्री में आपको कुछ अदर बीमारियां हैं शरीर में, या आप हेल्दी हो या नहीं, ये सारा परखा जाएगा with some investigations and examinations. And that couple should enter in the pregnancy with a very good mental and physical health. That's all. And उससे एग्जामिनेशन के बाद में अगर कुछ शोधन उपचार उसमें जरूरी है, जो हम लोग बोलते हैं कि क्लींजिंग प्रोसीजर्स, बॉडी क्लींजिंग प्रोसीजर्स, वो हम लोग सजेस्ट करते हैं उसमें. एंड वो होने के बाद में सम रसायन औषधि या वाजीकरण औषधि प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि बीज अच्छा तैयार हो, और उस अच्छे बीज से जो गर्भ उत्पन्न हो वो डेफिनेटली अच्छा होगा. और बस प्रेगनेंसी हो गई और यस दैट मतलब काम खत्म, ये ऐसा नहीं है. तो 9 महीने जब जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको अच्छी तरह से खान पान, अच्छी तरह से मतलब कि जो गर्भ के पोषण के लिए बहुत बढ़िया हो, गर्भ के जो धातु उत्पन्न हो रहे उसमें वो सहायकारी हो, ऐसा डाइट एंड लाइफस्टाइल उसने पूरे 9 महीने अडॉप्ट करना चाहिए. आयुर्वेद में जैसे जैसे जिस अंग का उत्पत्ति जिस महीने में होती है उसके हिसाब से डाइट प्लान करके या दवाई प्लान करके बताई है. तो उस हिसाब से हर महीने का डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग, एंड that should be followed. Some yoga practices we can do to enhance the physical health and mental health, mental peace, because throughout pregnancy that lady should be in happy, peaceful condition. So for that, yoga and pranayam, they are very useful, so she can follow that. And with this whole course, it is called as Garbha Sanskar. Okay. अच्छा मैम, these days we have been getting advisories कि भाई आप ये काढ़ा पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी खाइए, लहसुन खाइए. लेकिन प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें जहां तक पता होता है, आम लोगों को पता है, गर्म होती है, आम भाषा में जो बोले तो गर्म होती है. तो इस टाइम पे प्रेग्नेंट फीमेल के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? Yes, in this pandemic situation, pregnancy is vulnerable group, कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरी है. तो प्रोटेक्शन इन ऑल सेंस इट्स नेसेसरी. मतलब जो हैंड हाइजीन, वियरिंग अ मास्क और बाकी सारी जो चीजें हम लोग बोलते हैं, तो ये सारी चीजें करनी ही है. बट जो एडवाइस हम लोग करते हैं फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग, उसमें बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए. क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भी जो हम लोग दवाई प्रेगनेंसी में देते हैं वो मधुर, शीत, स्निग्ध ऐसी दवाई होनी चाहिए. और जो भी एडवाइस देते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये काढ़ा पिए या जो भी है, तो उसमें ऐसी चीजें नहीं है.
तो ये उष्ण है, बहुत सारी स्पाइसेस हैं, तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग नहीं ले सकते। इंस्टेड ऑफ दैट प्रेगनेंसी में चलने वाली इम्यूनिटी बूस्टिंग जो हर्ब्स है वो हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि गिलोय है तो गिलोय चल जाएगा, गिलोय नॉर्मल पर्सन के लिए भी और प्रेगनेंसी में भी दोनों जगह चल जाएगा, तो गिलोय डेफिनेटली कैन बी कंज्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट बाकी चीजों के अलावा आप लोग आंवला या यष्टि मधु ऐसी चीजें आप लोग ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू एनहांस द इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। You are associated with All India Institute of Ayurveda, New Delhi. बहुत आजकल न्यूज में है, बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। यस, मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारी इंस्टीट्यूट जैसे ही कोरोना मतलब लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में, जो शुरू हुआ था मार्च में, बट हमारे इंस्टीट्यूट में कभी भी लॉकडाउन नहीं था। मतलब हम लोग डे 1 से काम कर रहे हैं और काम बहुत सारी चीजों में किया हमने, कि जैसे फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स एंड फॉर क्यूरेटिव मेजर्स बोथ। तो प्रिवेंटिव में जो आयुष ने एडवाइजरी अभी जारी की थी, उसमें हमारे बहुत सारे फैकल्टीज ने उसमें काम किया था टू डिजाइन द होल एडवाइजरी। बहुत सारे लोग उसमें ऑल ओवर इंडिया से जुड़े थे, बट हमारी पूरी फैकल्टी भी उसमें थी, तो हम लोग उसमें पहले काम कर रहे थे। देन प्रैक्टिशनर्स गाइडलाइन, जो गाइडलाइन बनाई प्रैक्टिशनर्स के लिए आयुष ने कि क्या करना चाहिए जनरल प्रैक्टिस में, व्हाट टाइप ऑफ एडवाइस यू कैन सजेस्ट टू द पीपल्स। तो एडवाइजरी में हम लोग काम कर रहे थे। अगेन हमारी इंस्टीट्यूट में डे 1 से जो पेशेंट आ रहे थे, हमने रेगुलर जो स्पेशलिटी ओपीडीज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कोविड ओपीडीज लाइक फ्लू ओपीडीज एंड इमरजेंसी ओपीडीज, and we are providing free testing center to all COVID testing. Then our indoor wards are converted in COVID wards. Our institute is declared as CHC, that is COVID Health Center. तो ये हेल्थ सेंटर के अंडर हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट केसेस एडमिट करते हैं, एंड वी आर ट्रीटिंग देम विथ टोटल आयुर्वेदा मेडिसिन्स for their all sign and symptoms, and I'm happy to share here that there is 0% mortality, and तीसरे चौथे दिन सारे symptoms लोगों के बहुत अच्छी तरह से कम हो जाते हैं with Ayurveda medicines, and actually we are taking the sessions of yoga, pranayam and recreation activities for them to make a mentally peaceful, बिकॉज ये सारे लोग जो एडमिट होते हैं एंजाइटी में होते हैं, तो स्ट्रेस होता है बहुत, तो ये सारी चीजें एलिवेट करने के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटीज, योगा, प्राणायाम, ये कंटिन्यूसली शुरू होता है। एंड फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स हमने आयुर रक्षा किट बनाया है, जिसमें कि संचमनी वटी है, देन आयुष क्वाथ है एंड अनुतेल फॉर नेजल एप्लीकेशंस। तो ये हमने नियर बाय एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉर प्रिवेंशन, एंड वी हैव अंडरटुक द लार्जेस्ट कोहॉर्ट स्टडी इन द वर्ल्ड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है कोरोना के, जो दिल्ली पुलिस के वॉरियर्स हैं, उनको हमने 80,000 लोगों को ये प्रिवेंटिव किट दिया था, एंड दिस इज अ वेरी large, I mean to say mega project of All India Institute of Ayurveda, and we are conducting almost 19 research projects now on the COVID at various centers in collaboration with various centers. Oh, so that's really wonderful. Continuously working on it. That's really wonderful, Dr. Dr. Sujata. Next, we move over to Dr. Amit. He is an MD in yoga along with being a private practitioner. So what exactly is integrative medicine, Dr. Amit? Yeah, thank you, Dr. Shalini, and we are really proud of the achievements what AIA has done with the Association of Dr. Sujata. So what we have in integrative medicine is we treat the person as whole and not the disease. जब हम कई बार होता है कि हम अपने डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो हमें उस बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति का इलाज नहीं होता है। तो जब हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है,
और इसीलिए योग, आयुर्वेद और मॉडर्न इनका साथ में लेके इनका अगर इलाज किया जाए किसी का, तो इसको हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन कह सकते हैं। तो आने वाले समय में आप अगर देखें तो इस तरह का इंटीग्रेशन के वजह से जो व्यक्ति है उनको उसका पूरा पूरा फायदा मिलता है। और मुझे लगता है कि यही हमारा फ्यूचर है, जहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करें। और इस तरह का इंटीग्रेशन अगर जैसे आयुष का जो सिस्टम है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसका अगर मॉडर्न के साथ में किया जाए तो इसके आउटकम बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर पेशेंट्स को बार बार डॉक्टर्स के पास में और दवाइयों के पास में नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये सिस्टम हमारे हिंदुस्तान के लिए तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हमारे संस्कृति का हिस्सा है योग और आयुर्वेद। Okay. You have been a clinician since more than 20 years now and into yoga practices. So, जी, मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर शालिनी का नेटवर्क का कुछ इश्यू आ गया, तो डॉक्टर शालिनी ज्वाइन करते हैं। इसके मीन टाइम जैसे डॉक्टर सुजाता मैडम अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे विथ रिगार्ड टू द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। तो या डॉक्टर शालिनी, यू आर देयर, प्लीज कंटिन्यू। thank you. So I just wanted to know what are the asanas more relevant to the current scenario? ओके, सो जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इस समय में ज़्यादा होता है, और डॉक्टर सुजाता जो है वो प्रेगनेंसी के 9 months के बारे में बता रहे थे। या सो मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट 20 years से हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें हमने इस तरह से की प्रैक्टिसेस ही दी है, जहाँ पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आयुर्वेद का जो मासिक जो है उसको भी फॉलो किया जाता है, और उसमें जो परिचर्या जो दी है उसको भी फॉलो करते हैं। साथ ही साथ में हम उनको योग प्रैक्टिसेस देते हैं ड्यूरिंग एवरी ट्राइमेस्टर। पहले के जो 3 महीने होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, तो उसमें, और सेकेंड ट्राइमेस्टर 4th, 5th, 6th मंथ, और थर्ड ट्राइमेस्टर 7th, 8th, 9th में, इसमें हर ट्राइमेस्टर में अलग अलग प्रैक्टिसेस दी जाती है। मुझे आपके साथ में ये शेयर करते हुए बहुत खुशी होती है कि मोर देन 100 लेडीज़ हैं जिनको हमने ऑल थ्रू आउट 9 months जो है इस तरीके के प्रैक्टिसेस दी, और उनका जो इंटर यूट्राइन ग्रोथ जो है बच्चों की, मतलब जो होने वाला बेबी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी मिली, और उनका वजन 3.5 किलो के आसपास रहा। साथ ही साथ में इसमें से 99% जो डिलीवरीज हुई वो नॉर्मल डिलीवरीज हुई, यानी कि उनको सीजरियन सेक्शन नहीं करना पड़ा। साथ ही साथ में अगर वो प्राइमी है, यानी कि पहले बार उनको प्रेगनेंसी हुई है, तो अगर हम योग की प्रैक्टिसेस उनको दे रहे हैं तो उनमें जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस रहता है प्रेगनेंसी को लेके, तो वो भी काफ़ी कम हुआ है, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। और साथ ही साथ में ये देखा गया है कि ये जो लेडीज़ हैं जिनको हमने ये 9 months ऑफ ये दिया है, उनमें जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के कारण जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत कम पाई गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे डॉक्टर शालिनी ने अभी पूछा था कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या है, तो ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन का बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर एलोपैथिक के डॉक्टर्स जो हैं वो ये केसेस हमको रिफ़र करते हैं, और हम उनको ये योगा की प्रैक्टिसेस ऑल थ्रू आउट द 9 months देते हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर द फैमिली, फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर ऑल्सो। Oh, that's really wonderful. अभी आपके रिसर्च है ऑन योगा एंड डायबिटीज, जी, am I right? तो उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। सिंस ये हमारा सब्जेक्ट रहा है योगा एंड डायबिटीज़, तो आज अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां हो रही है वो ये लाइफस्टाइल के, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, जिसे हम NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसा नाम देते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, कैंसर, ये सारे लेडीज़ में PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के जो तकलीफ़ें हैं, ये सारे हमारे ख़राब लाइफस्टाइल का ही कारण है।
तो हम मेरा जो रिसर्च हुआ है वो ये तनाव यानी कि स्ट्रेस के ऊपर हुआ है, क्योंकि ये सारी बीमारियों में एक कॉमन जो फैक्टर है वो तनाव यानी कि स्ट्रेस रहा है। तो हमने ये अपने स्टडी में देखा जो कि विच वाज स्प्रेड ओवर द होल ऑफ द इंडिया, उसमें 2,25,000 पीपल वर एनरोल्ड इन द 7 जोन्स इन ऑल ऑफ द इंडिया। तो इसमें हमने देखा कि जो डायबिटीज से जो पीड़ित हैं और जो प्री डायबिटिक है जिन्हें हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज बोलते हैं, दोनों में जो कारण जो रहा है वो तनाव ही रहा है। यानी कि अगर आप तनाव को कम करते हैं थ्रू दी योगा की प्रैक्टिस, जैसे हमने 3 महीने की जब योगा की प्रैक्टिस दी तो उसके वजह से ये जो बॉर्डर लाइन वाले जो डायबिटिक थे उसमें से 57% पीपल टर्न आउट टू बी नॉन डायबिटिक, और जो डायबिटीज जिनको था उनको जब 3 महीने का योगा की प्रैक्टिस दी गई तो उसमें से अराउंड 20% टर्न आउट टू बी बॉर्डर लाइन डायबिटीज। तो इसीलिए तनाव आज जो है सबसे बड़ा कारण है, और यही वजह है कि जब आप योग की प्रैक्टिसेस उनको देते हैं तो ये तनाव जब कम होता है यानी कि शारीरिक फिटनेस यानी कि फिजिकल फिटनेस तो उनको मिलती है थ्रू द आसना, थ्रू द लूजनिंग एक्सरसाइजेज एंड थ्रू सूर्य नमस्कार, साथ ही साथ में इसमें प्राणायाम और मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं उसके वजह से जो तनाव है वो कम होता है। एंड वी हैव फाउंड ए वंडरफुल रिजल्ट्स इन दिस। इनफैक्ट हमारे यूनिवर्सिटी जो एस व्यासा के नाम से वह प्रचलित है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, उन्होंने 40 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं ताकि हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी तक ये मैसेज जाए, और उसमें से 4 पेपर जो हैं वो मेरे भी पब्लिश हुए हैं जी। मेरे ख्याल से नेटवर्क का कोई इश्यू है, और डॉक्टर शालिनी जो है शी इज नॉट कनेक्टेड टू अस। डॉक्टर शालिनी, आर यू देयर? Yeah. Is there some, I think, some issue with my network? Or what you can do is you can off your video, and so that the only you can put your audio on. Yeah, I think that will be a good thing happening. Yeah. Okay. So you have आपने अभी हमें योगा आसन के बारे में बताया। मैं एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रही हूँ आज, हालांकि हम ज्यादातर प्रेगनेंसी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो बच्चे तनाव से ग्रस्त हैं एग्जाम नहीं होने के कारण, रिजल्ट्स के बाद एक्सपेक्टेड जिन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए उनके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए कैसा है कि ये जो आज की जो पैंडेमिक कंडीशन है उसको और ये तनाव, ये दोनों को लेते हुए मैं ये प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा, सो दैट हमारे जो एल्डर्स जो है वो भी इससे अछूते नहीं रहे ये जवाब से। तो क्या हो रहा है कि ये पैंडेमिक कंडीशन में देयर इज लॉट ऑफ फियर अमंग द पीपल, and we have been working all throughout these 4 months, as Dr. Sujata madam has also suggested, at the Premier Institute. So we at the OPD level have been also been working for all these 4 months, and we have seen almost around 400 patients who were symptomatic or non-symptomatic, and we were able to relieve them because of the Ayurvedic formulations and Ayurvedic approach. Also, we have been able to continue the online yoga sessions, whereby we will have been to reduce their respiratory distress, and we were also able to reduce the stress which used to be there. अब आपका जो प्रश्न है कि बच्चों में क्या किया जाए, तो बच्चों में हम क्या करते हैं कि देयर आर डायनामिक काइंड ऑफ ए प्रैक्टिसेस, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग है, साइडवर्ड बेंडिंग है, तो ये हम बच्चों में कराते हैं। बच्चों में देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज, तो ये एनर्जीज जो है इस काइनेटिक एनर्जीज के फॉर्म में इसको हमको रिलीज करना है, तो इसीलिए हम उनको फास्ट प्रैक्टिसेस कराते हैं, और दे एंजॉय दिस क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। साथ ही साथ में हम उनको उनके साथ में रह के जो बहुत लगातार आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उनको 4-4, 6-6 घंटे कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है कंप्यूटर के सामने, जिसकी कि उनकी तैयारी नहीं है, तो उनके लिए हम प्राणायाम और मेडिटेशन भी कराते हैं। इसमें सबसे अच्छा एक उदाहरण जो है वो है ओम चांटिंग का। जो ओम जो शब्द है उसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया, अकार, उकार और मकार। तो अकार का चांट जैसे करेंगे लंबी गहरी सांस लेके आ, फिर उकार का चांटिंग एंड देन मकार, और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन
ओम। तो इस तरह के अगर ये कंटिन्यूस चांटिंग हम करें, अकार उकार मकार, तो दिस ब्रिंग्स अबाउट ए रेजोनेंस टू देयर माइंड, एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट लॉट ऑफ कामिंग डाउन इफेक्ट। तो उनको जो इरिटेशन है, उनको जो एंगर है, ये सारी परिस्थितियों की वजह से, तो दे विल बी एबल टू एक्सेप्ट देमसेल्फ एंड द गिवन कंडीशन मच मोर बेटर। एंड वी ऑल नो दैट कि जैसे जैसे हमारा तनाव जो है वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कामिंग डाउन स्टेट। तो जब हम ये चांटिंग करते हैं तो किससे क्या हो रहा है कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो वी आर एबल टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑल्सो। सो इसलिए इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको ये मिलता है, एंड दिस वी हैव फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। जिनको रात में नींद नहीं आती है, उनको बहुत सारे विचार आते हैं, तो ये लेटे लेटे भी आकार आ ऊ म का चांट कर करें, तो दिस हैज बीन ए वंडरफुल काइंड ऑफ अप्रोच। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित। आई एम श्योर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत इंफॉर्मेशन मिली है। या मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का in a government setup. Yeah. Dr. Sunita, your audio. Yeah. You No. can, yes. Yeah. You've been working in the public health center since how many years? Been working around 15 years. Okay. So, what do you think is the role of Ayurveda in public health? And this is with special reference to Dharaniya Vegas. First of all, I want to say thank you for this program. More than the other people listening, I have this opportunity to, for my friends and family, focusing on Meghalaya, because a lot of the Ayurvedic concepts people are not familiar with. So I've prepared a slide. It's a very concise, it's not very scientific, but in the way that people understands, and as I said, focusing on the people, simplifying the language. So I'll just share the slides first of all, and then I'll go from there. Yeah. Okay, please go. Is that good? Yeah, we can see. Yeah. Okay. Yeah. If the people have been listening to this, if they've been following it, so I think in the previous episodes, Dr. Sharda has mentioned about the Dinacharya and Ritucharya. So based on those concepts, and I wanted to expand a little more about the Dharnya Vegas. The Dharnya Vegas, in the sense that if you look at the current context, and we as human have tend to sideline these kinds of concepts, or these kinds of the mental situations, because we have other things going on. But based on this current scenario, I feel I want to tell people, or to say that Ayurveda actually has this whole concept of Swasthavrita, which covers the entire the aspects of how you can live life, not just living life as it is, but successfully, and living happily ever after. After, when you watch a lot of these Bollywood movies, is always being happy. So, and I think as human nature, we all want to be happy, we want to have a happy ending. And I think along all these years, trying to trying to bridge a gap with the other what do you call it, the other cultures, the way that we followed, we've actually lost our own culture. So, and I think people should start looking back actually about how culturally Ayurveda has culturally been built for us as human beings. And and it all focused not just about your physical health, but it spoke about your mental health and your spiritually, your mind, body and soul. It's all connected, and no wonder. And it's Ayurveda is actually a holistic approach. It's not, and you just target at one particular cell, but it is a holistic in itself. So for me, I would just like to express in this, like
for me, in this current situation, when my husband is already working, not been home for months, I feel as though I'm actually watching a movie, one of those, fiction movie, and I'm waiting for the end because I'm getting scared. This is my, my honest reaction. But then I feel like, this is not, there's no end here, and this movie is getting dragged on, so I feel I want an end to this, and to go from there, and I'm stressed and have anxiety and all that stuff. So, but if you look at Ayurveda, is traditionally, it's been, not just traditionally, I think it's a science that has explained, it has enough immense knowledge about the conceptualization and how to lead a very disease free life. So, and Dharaniya Vegas is actually, as Shalini has mentioned, Dr. Shalini has mentioned about it. So these are the ones are the Vegas that we need to suppress. And and these are the mental thoughts. And most of these Dharaniya Vegas, if we are, not able to, suppress them, control them, they actually arises a lot of diseases, which is mental disorder. And it's been just a couple of years, I think mental health has been included as one of the implementation of a program in the current, with the government setup. Earlier we never had something called mental health, but now we have. It's because there is a rise in mental health disorders. That's why we have, uh, we should be listening, we should be understanding what these Dharina Vegas is, and how we control that, and how to not just know them, but how do we overcome such Vegas. So some of these are mentioned is, if you look at it as lobha, shok, bhaya, krodh, ahankar, nilajata, irsha, abhasuya, kama, mana, Mada, Chituvega, and Vishada. And when you look at all that, actually, there are a lot of other things, but I just want to relate to the current situation, to the current pandemic situation. When you look at these Dharani Vegas, the krodh, you have anger, you have bhaya, and you're scared. And actually, when you look at those, all this leads to nirlajata. What do you say? When you translate, you say shamelessness. That was the old in the old translation, it's called shamelessness. But actually, when you look at this newer language we have now, it's called stigmatization. Stigmatization has, it's actually a very new concept, in we've added into the setups now. But there was nothing as word as stigmatization, but is actually, and look at it, but Ayurveda has already expounded, already spoken about that, about stigmatization. And now we as uh, doctors and paramedical doctors, and neighbors, and all not just neighbors, a friends circle, we don't want to, we actually uh, we kind of we are scared. And if we have a neighbor who's suffering from, who's a COVID positive, we're like, instead of helping each other, we kind of, no, wo to, it's a positive, wo positive hai, dur reh jao. I mean, we're actually stigmatizing that particular person. And also we have seen in the news, in where the doctors, paramedical staff, they couldn't go back home because the community did not allow them, because they're thinking they work in the health sector. They're scared about that. So these are the situations where people are, which is really relevant. And how do we do that? But it's only with Ayurveda also talks about, if we're able to suppress such thoughts, that will, that will not lead us into a mental disorder. So I think it's very important that the mental health, if you're not able to restrain or suppress those thoughts, then it will lead us into a kind of uh, an issues, which kind of a social, social issues. You're not able to even relate to people. So that is one of the reasons. And another is, I agree with and I'm even Dr. Mishra has spoken about, the anxiety issues. When you look, even that, I think we all, each one of us, struggle with anxiety. And with this current situation, it's not helping anybody, because we're anxious about, when you're reading the news, just looking at those cases being there on, on screen, brings fear, and it all leads to these disorders. But then, and the are stuff which, like we have the social anxiety disorders, and we also have a lot of these depressive disorders, which has increased in nature. And that brings us fear in itself.
So, but I think, how do we overcome that? We heard a lot of these. How do we overcome these vegas? How do we control our thoughts? And this can be done through what, as Dr. Mishra has mentioned it, who's a specialty in that yoga can help, because even in this time people lose a lot of sleep. So I think that he's mentioned some mantras to do that. And also we have Ayurvedic medicines, which can calm down a system. But this has to be taken and has to be done according, an Ayurvedic doctor has to supervise. You can't just go to the counter and buy those medicines because in advertise. So these are the things which, which is yeah, which we cannot neglect our mental health. We need to, in order to be a social, to be socially, to have those skills, social skills, and to be able to relate, we actually have to have to look back to what Ayurveda taught us. And I think we should try to look back and bring back into, make it into a a regime, and look back and put that into our lives. Yeah. So thank you, Dr. Sumita. That was a wonderful feedback on the धारणीय वेगस. जैसे कि इन्होंने कहा, स्टिग्मेटाइजेशन एक रियलिटी है. स्टिग्मेटाइजेशन यानी कि दोष आरोपण, यानी कि जब ये कहा जाता है अरे उसको तो कोरोना है, इससे दूर रहो. अगेन बहुत अब इस लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना के दौरान ने बताया, नर्सेज अपने घर नहीं जा पा रहे, घर जो रेंटेड अपार्टमेंट्स में है उनको बोला जा रहा है वो खाली करो. तो ये जो चीज है ये हमें धारण करना है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देना है. दूसरा है फियर यानी भय. कोरोना पॉजिटिव होते ही इंसान के अंदर एक भय आ जाता है, अरे कोरोना हो गया अब मैं नहीं बचूंगा. लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कोरोना पॉजिटिव से हर कोई नहीं मरता. मरने से ज्यादा लोग बच रहे हैं, मरने से ज्यादा लोग सही हो रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव लव, केयर एंड ऑफ कोर्स द मेडिसिन आयुर्वेदिक लीजिए या एलोपैथिक लीजिए. आयुर्वेदिक का प्रिवेंटिव रोल है बहुत ज्यादा, इम्यूनिटी बढ़ाने में रोल है. दूसरा है मेंटल हेल्थ. जब एक 15 दिन का क्वारंटाइन होता है तो इंसान सिर्फ एक मोबाइल, कई क्वारंटाइन सेंटर्स में तो हमने ये भी देखा है कि लोगों को मोबाइल भी नहीं दिया जा रहा. टाइम कैसे पास हो. अच्छा भला हेल्दी बंदा है, उसको सब काम धंधा छुड़वा के बैठा दिया क्वारंटाइन सेंटर में. क्यों? क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है. इसके लिए हम यहाँ दिल्ली में देखते हैं कि सबसे पहले होम क्वारंटाइन शुरू किया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच था. हालांकि हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि होम क्वारंटाइन में रखा जाए, लेकिन आई थिंक होम क्वारंटाइन एक बहुत अच्छा एक स्टेप था, जिससे कि लोग जब अपनी फैमिली के साथ रहता है तो उसकी पॉजिटिविटी बनी रहती है. तो जो मेंटल हेल्थ है, जो डिप्रेशन वगैरह जो क्वारंटाइन के वजह से हो जाते हैं वो नहीं हो पाता. ये टाइम है. एक कोट है जो बहुत आजकल चल रहा है, हर मीम में, ऑलमोस्ट एवरी मीम, एवरी ऑल्टरनेट व्हाट्सएप मैसेज आता है, यू आर नॉट स्टक एट होम, यू आर सेफ एट होम. तो हम लोग को ये लेके मान के चलना है कि आप घर में हैं, सेफ हैं. इस दौरान टाइम जो मिला है आप लोग को अभी, उसको यूटिलाइज करिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए बढ़ाइए, जिसकी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाइए बच्चों के साथ. नहीं तो और 3-4 महीने बाद क्या होगा, सब लोगों को एक्सेप्ट हो जाएगा. कोरोना का वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई कोरोना है, ठीक है, जिंदगी तो आगे बढ़नी है. अभी ये नया है. आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजेशन जो भी है, हेल्थ एंड हाइजीन जो भी है वो मेंटेन करिए, अच्छा खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए. 3-4 महीने के बाद ये टाइम दोबारा नहीं आएगा जब आपको घर से काम करने की फुर्सत मिल रही है, जब आपको इतना, कम से कम इतना समय मिल रहा है कि बच्चे, फैमिली, आपके माँ बाप, जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली हैं, सब कोई आपके आंखों के सामने है. तो इस दौरान इस चीज को, इस पीरियड को एंजॉय करिए. और डॉक्टर सुमिता, आपसे I want to ask you one more thing. What has been the role of as an Ayurvedic practitioner in these civil hospitals in controlling the pandemic? I think the place where I'm posted it's, as you know, government setups, you don't have everything, all the infrastructures and all that. But then we have there's lack of manpower, both doctors and paramedical. But I think I'm blessed to be working in this particular setup in Civil Hospital Nongpa, because we actually have, since the time I've joined 2005, we've had this whole rapport, a whole rapport about with each other, with among the doctors, the allopathic doctors. So we have this intersectoral or
kind of we referral cases where they send my cases, the skin cases they would send to me when we did not have any skin specialists. And then the cases like some of the cases, the emergency case that I sent to them. So I mean, yeah, it's I think the doctors, we have a very good teamwork. So and they're doing, I'm not there in the COVID care, but I'm just looking after the OPD. And right now the government has given us, as per the Government of India guidelines, we have got these preventive medicines like capsule I-64 and Shamanavati and all that. So right now we are giving to the people who are looking for preventive treatment, like even me, the other doctors, allopath doctors, paramedical, and lower grade, they have come to take the preventive medicines. We're giving them, and we've got I've charted out, keeping a separate this is for me, so that these are the medicine they're taking. So we'll see how it goes from there. So this is what's happening right now. ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुजाता मैम, आप अपने एक्सपीरियंस ओपीडी में किस टाइप के मैक्सिमम पेशेंट्स आप डील करती हैं, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? Ma'am, you have to unmute yourself. You are muted, ma'am. Yes. Hello. हाँ जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। In usual situations or in this COVID situation? Usual as well as COVID, whatever. Some of your experiences. Actually, in my department, we are running 3 OPDs, 3 different OPDs. That is one for antenatal care patients, that is for pregnancy. The other one is for infertility, especially because infertility cases needs a lot of time for history and everything and counseling. So we have a separate OPD for that. And general OPD. There we will treat many such cases of menorrhagia, leukorrhea, मतलब जो नॉर्मल केसेस होते हैं। तो उसके लिए 3 ओपीडी हम लोग चलाते हैं। ऑलमोस्ट 150 के अबाउट 200 तक केसेस इन गायनिक ओपीडीज रहते हैं। वी आर हैविंग ओपीडी ऑफ 2000 पर डे at All India Institute of Ayurveda with all 24 OPDs. और 24 OPDs मतलब ये है कि we are having general OPDs also and super specialty OPDs also. Super specialties में musculoskeletal, diabetes, respiratory, then anorectal, PCOD, then infertility, menopause clinic, ये सारी चीजें हैं। So we are dealing with super specialty also, and because this All India Institute of Ayurveda is a tertiary care hospital in field of Ayurveda. So this is a unique institute which is a tertiary care hospital in field of Ayurveda. तो यहाँ बाकी मेडिसिन और बाकी सारी जगह से CKD और बहुत chronic cases, all diseases वो सारे आते हैं कि जो failure है बहुत सारी जगह में, दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूम फिर के then they are coming to us and yes surely बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाते हैं वो सारे केसेस। मतलब डायलिसिस पे भी अगर हो, क्रॉनिक केसेस हो, अगर किडनी डिसीज के, सीकेडी के, फिर भी वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट से देन डायलिसिस उनका कम होना, देन नॉर्मल की तरफ बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें नॉर्मल रूटीन उनका शुरू हो जाता है। So we are having a variety of cases here, and we are dealing with all general cases also and with the super specialty also. We are having here a integrative oncology center. Here we are working with NICPR, National Cancer Institute। उसके साथ में हमारा MOU है and उसमें हम लोग इंटीग्रेटिव क्लिनिक चलाते हैं, इंटीग्रेशन विद इन द आयुष, like every day there will be homeopathy, Siddha, Unani and Ayurveda person who is dealing with the cancer patients. So ये integrative clinic है oncology का, and we have developed a very good center here. So and the beauty of All India Institute of Ayurveda is it is supported with all modern technologies, laboratories and investigations also, including MRI.
सो बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटीज यहाँ है, तो पेशेंट बहुत हैप्पी रहते हैं कि हाँ, बहुत सारी जगह घूमना नहीं होता है, अंडर वन रूफ दे विल गेट एवरीथिंग. Ayurveda also, and with modern investigation supported by modern technologies. So and in nowadays हमने जब से कोविड शुरू हुआ है तो continuously we are running OPDs for flu OPD and emergency OPDs. तो उसमें जनरल केसेस जो आते हैं सिम्टम्स वाले, जैसे कि जिनको लगता है कि क्या मुझे कोविड हुआ है, क्या सर्दी खांसी है, थोड़ा जुकाम है, देन गले में थोड़ा सा खराश है या थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एंड मतलब जो सिम्टम रिलेट करते हो सारे लोग कोविड से, ऐसे सारे केसेस आ रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग देम फ्री टेस्टिंग हियर, एंड इफ दे comes to be positive in the testing, वो एडमिट हो सकते हैं हमारे यहाँ, एंड दे आर गेटिंग अ वेरी गुड ट्रीटमेंट. एंड yesterday only honorable minister Shripad Naik sir, day before yesterday, they visited our institute and declare this as a free treatment for all COVID patients. तो फ्री ट्रीटमेंट सारे पेशेंट्स को अभी मिलेगी कोविड के, एंड वेंटिलेटर भी इंस्टॉल हुआ है जो कि हमें अभी मिला है, तो we can deal with serious patients also now onwards with experts doctors appointing here, so we can do that also. This is really wonderful. एक सवाल, प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग, मॉडर्न इसका है गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. बहुत बार लोगों से पूछा गया, आप लोग के आयुर्वेद में सिजेरियन होता है कि नहीं होता? इसका प्लीज जवाब दे. एक्चुअली जनता मांग रही है क्वेश्चन. देखिए, अगर फादर ऑफ द सर्जरी हम जिसको बोलते हैं सुश्रुत को अगर बोलेंगे, मतलब आयुर्वेद पर्सन को अगर फादर ऑफ द सर्जरी बोल रहे हैं, तो ये सवाल मन में आना ही नहीं चाहिए कि आयुर्वेद में सर्जरी है या नहीं है. तो यस, आयुर्वेद में सर्जरी थी, सर्जरी है, सर्जरी रहेगी. बस उस टाइम का जो टेक्निक था करने का, या जो इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे जो इस्तेमाल होते थे, तो वो थोड़े अलग तरीके के थे. एंड एनेस्थीसिया बहुत अच्छी तरह से जो आजकल डेवलप हुआ है, वो उस टाइम पे उतना डेवलपमेंट एनेस्थीसिया. और देखिए, अभी तो सारे ही फील्ड्स में डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, तो मेडिकल फील्ड में भी डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है. तो अभी हमारे पास कन्वेंशनल मेडिसिन के पास क्या है, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो वो एक्चुअली ये जो खोज है, ये तो बेसिक साइंसेस की है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड जो सारी खोज है वो है, एंड दे आर इंटीग्रेटिंग दैट रिसर्चेस इन देयर मेडिसिन प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिसेस. So that we can do also. Ayurveda person can integrate this. मतलब सोनोग्राफी का खोज कन्वेंशनल मेडिसिन के किसी डॉक्टर ने नहीं लगाया. दिस इज द इन्वेंशन ऑफ बेसिक साइंसेस फील्ड. सो उन्होंने इंटीग्रेट किया है कन्वेंशनल मेडिसिन उससे, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं. बस हमारी थिंकिंग थोड़ी सी बदलनी होगी, उस डायरेक्शन में चलना होगा कि हम लोग बेसिक साइंसेस के साथ आयुर्वेद को इंटीग्रेट करके वी शुड मूव फॉरवर्ड, और उसमें एडिशन होती रहे. तो डेफिनेटली यस, सीजर है. और मैं पिछले 23 साल से ऑब्स्टेट्रिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी सर्जरीज की हैं. तो ऐसा कोई ये नहीं है कि है या नहीं है. हाँ, कुछ सेंटर्स में करते हैं, कुछ सेंटर्स में नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एट देयर सेंटर्स. सो बस ये थोड़ा सा, और जो डर होता है, मतलब लीगल प्रोटेक्शन का डर बहुत दिमाग में बैठ जाता है लोगों को, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पीछे हटते हैं. बट हम लोग करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल डेफिनेटली कम इनटू मेन स्ट्रीम. तो प्रेफरेंसेस लोगों के ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे. सो व्यूअर्स, आई होप आप लोग को अभी ये क्लियर हो गया होगा कि आयुर्वेद सिर्फ मेडिसिनल नहीं है, सर्जरी भी होती है. और इट इज इंडीड अमेजिंग कि उस जमाने में जब माइक्रोस्कोप नहीं होता था, अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होते थे, फिर भी हर तरह की सर्जरी होती थी, इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन, यानी कि जो बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता है, सिंपली स्टेटेड. यस,
थैंक यू सो मच डॉक्टर। फर्दर बहुत बढ़िया जो चीज आजकल मॉडर्न मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहा है, क्षार सूत्र एंड क्षारसूत्र। ऑल एनोरेक्टल चीजें, ये तो बहुत मतलब ये तो आयुर्वेद का देन है सारे जग का, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें। और कैटरैक्ट सर्जरी इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब बाय द सुश्रुता। तो आयुर्वेद में सर्जरी है या नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। यस। सो जिनको नहीं पता, दैट इज देयर इलिटरेसी बेसिकली, उनकी Yes. अवेयरनेस में कुछ कमी है। तो इसमें हम यही बोलेंगे, जागो वियोस जागो, आयुर्वेद को समझो, आयुर्वेद को जानो। सो डॉक्टर अमित, आप क्या बोलेंगे अभी इस पे? मैं मैडम के जो चीज़ें मैडम ने शेयर की वो बहुत मुझे अच्छा लगा। जो आपने मेरे को प्रश्न किया था कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि जहाँ पे मैडम ने जैसे कहा कि ये तो बेसिक साइंस के कुछ इन्वेंशंस हैं जो आगे आए हैं और इसको ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर वो मॉडर्न वाले इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स उसको क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं तो कई लेडीज़ के मन में ये प्रश्न आता होगा कि हम क्या प्रैक्टिसेस पॉसिबल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब योगा जो है वो ये 9 महीने के दौरान कर सकते हैं क्या। तो इसमें क्या है कि स्पेशली ट्रेंड योगा थेरेपिस्ट हैं हमारे पास में और सब जगह, जो स्पेसिफिकली हर ट्राइमेस्टर के अनुसार प्रैक्टिसेस देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेचिंग होती है नॉर्मली। जैसे हमारी जो लेडीज़ जो पहले गांव में रहा करती थी तो उनके शारीरिक श्रम बहुत हुआ करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो डिलीवरी के समय में नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती। अब क्योंकि हमारी जो बच्चियां जो शहरों में हैं उनके इतने शारीरिक श्रम यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं, तो हम ये व्यायाम उनको करवाते हैं, लूजनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। तो ये मसल्स की स्ट्रेचिंग होने की वजह से साथ ही साथ में इसमें सूर्य नमस्कार भी कराया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है। तो इसमें सूर्य नमस्कार जो है वो केवल खड़े होके करते हैं ऐसे नहीं है, इसमें बैठ के भी सूर्य नमस्कार कराया जाता है। साथ ही साथ में जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता है, यानी कि पहले 3 महीने से फिर चौथे, पाँचवें, छठे में जाते हैं, तो उसमें कुछ कुछ प्रैक्टिसेस को हम रोक देते हैं, वो वहाँ पे नहीं कराते हैं। और 7वें, 8वें, 9वें महीने में वो कुछ कुछ प्रैक्टिसेस को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह के अगर ये प्रैक्टिसेस को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, जो आजकल के मॉडर्न जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी इनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करें ताकि आपकी डिलीवरीज जो है वो नॉर्मल रहे। तो इसमें हमने क्या किया है कि बहुत से लोगों के मन में जो शंकाएं रहेंगी, तो हमने इस संडे यानी कि सुबह 7:30 से 8:30 हम एक लिंक साथ में यहाँ पे कमेंट में शेयर कर रहे हैं। अगर वो लिंक को आप क्लिक करते हैं तो हम आपको वो प्रोग्राम में एनरोल कर लेंगे, सो दैट हम ये आपको ज़्यादा और जानकारी दे सकें कि योगा और योगा थेरेपी में फ़र्क क्या है। होता क्या है कि जब भी हम योगा करने जाते हैं तो वहाँ पर योगा टीचर्स रहते हैं, लेकिन उसमें मेडिकल डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं डॉक्टर्स, और वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है या क्या क्या चीज़ें करनी है। इसके मार्गदर्शन में योगा थेरेपिस्ट जो है वो फिर वो प्रैक्टिसेस करवाते हैं। तो इसीलिए उसका थोड़ा सा एक टेस्ट मिले, इसीलिए हमने ये 7:30 संडे को ये इस तरह का एक प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया है, जो हमारे सारे व्यूअर्स जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित। डॉक्टर सुमीता, एनी मैसेज टू द मासेस? आपको अनम्यूट करना होगा मैडम। As listening to Dr. Sujata, I mean, All India Institute of Ayurveda is at its heights right now. And it was so motivating, listening to all the expertise and the experiences, and it's a tertiary. So we get motivated. So I would like to say, and this was, it was already prepared earlier. So I wanted to say was Ayurveda has a potential perspective for the management, both in curative. I want to stress, people talk about preventive, but it's a curative and preventive management of diseases. Thank you. थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुजाता मैम, आपका कोई मैसेज मासेस के लिए? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि एक्चुअली
आयुर्वेद जो है ये लाइफ सिस्टम है, मतलब आप उसके अनुसार अगर आप अपना लाइफ जो है, जो जीवन पद्धति है, वो सारी जो जहाँ जो आयुर्वेद ने बताई है वो अडॉप्ट करोगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी, या कोरोना या आए या कोई भी चीज आए जग में, तो यू इफ अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करोगे तो किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। बस यू हैव टू टेक केयर ऑफ डाइट, लाइफस्टाइल एंड डॉक्टर व्हाट डॉक्टर अमित इज सेइंग, योगा एंड मेडिटेशन फॉर मेंटल पीस। सो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना ये आयुर्वेद प्रथम करता है सबसे पहले। तो इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो मुझे लग रहा है कि हेल्दी नेशन हम लोग जल्दी ही पा सकते हैं। तो लोग उसके ऊपर जरूर ध्यान दें, श्योरली हम लोग ये चीज अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुजाता। डॉक्टर अमित, आपका कोई मैसेज? बिल्कुल, जैसे कि आयुष ने जो गाइडलाइंस दी है, और आपने जैसे डॉक्टर सुजाता को शुरुआत में पूछा था कि प्रेग्नेंट लेडीज में क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखा जाए, तो इसी तरह के कई बार प्रश्न लोगों के मन में आते हैं आयुष काढ़ा को लेके, या जैसे आजकल गुडुचि के बारे में, अश्वगंधा के बारे में कहा जा रहा है, तो हमने देखा है कि सडनली गुडुचि का सेल बहुत बढ़ गया या अश्वगंधा का सेल बढ़ गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। बट जैसे शुरुआत में कहा कि हमारा जो आयुर्वेद है उसमें प्रकृति कैसे है इंडिविजुअल की, उसकी अग्नि कैसे है, वो सारी चीज़ों का विचार होता है। और मैडम ने जैसे बताया कि संजीवनी बटी का उपयोग किया जा रहा है, तो ये कैसे है कि ये केस टू केस बेसिस में है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ये जनरलाइज्ड मेडिसिन नहीं दी जाती है। उनकी प्रकृति को, उनकी अग्नि को, उनको काल को, उनको उम्र को, सारे को ध्यान में रखते किया जाए। इसी तरह से जब हम योगा थेरेपी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग यूट्यूब में से कुछ प्रैक्टिसेस देख लेते हैं और फिर वो करने की चेष्टा करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा वार्निंग मैं देना चाहूँगा सभी लोगों को कि आप सभी चीज़ को इस तरह से खुद ब खुद चल के मत अपनाइए। आपके पास में एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन अगर है तो उनके पास में जाइए, उनको बताइए कि भाई मेरी ये तकलीफ है और मेरे अग्नि, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो। इसी तरह से अगर आप योगा को अपनाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कोई यूट्यूब चैनल में जाके वो यूट्यूब को देख के आप मत कीजिए। कई बार हमने ऐसे देखा भी है कि कुछ एक लोग जो है वो सूर्य नमस्कार जो है शीर्षासन करने की चेष्टा करते हैं और फिर उनको गर्दन में कोई लचक आ जाती है या कोई पेन आ जाता है, एंड देन दे एंड अप विथ गोइंग टू ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो ये सारी चीज़ों में देर आर डूज एंड डो नॉट्स। सो आप एक क्वालिफाइड योगा थेरेपिस्ट के पास में जाइए, यू टेक अ हेल्प ऑफ ए फिजिशियन ऑल्सो, and then you can think about what is good for you and what is not for you. Don't try to become your own doctor. So that is a message which I would be like to pass on to everyone. जी. Thank you so much, Dr. Amit. Thank you so much, viewers, for being there with us. जैसे कि हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बताया, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे से लाइफस्टाइल जिए, और आप लोग को जान के खुशी होगी कि अगले हफ्ते हम लोग डील करेंगे विद पेन मैनेजमेंट एंड माइग्रेन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, या सिंपल भाषा में बोले तो सरदर्द और घुटने एवं कमर के दर्द से। आशा करते हैं that this session would have been beneficial for you. For your information, please know that these sessions are being conducted under the aegis of Vivekanand Health Global, which is an integrative center offering treatment in Ayurveda, yoga and naturopathy, जो हम कह रहे थे integrative medicine. VHG has its presence in different areas in India as well as abroad and has taken the initiative to educate the people about what Ayurveda is. We aim to enlighten the masses on what Ayurveda has to offer and make the people confident enough to try it as their own system of medicine and not the alternate system of medicine. अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, मेंटल पीस बनाए रखिए, सबसे जरूरी बात। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डॉक्टर अमित, प्लीज टेक ओवर फॉर द शांति पाठ। जी, सिंस हमारा ये जो सेशन है दैट इज फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल, सो लेट्स प्रे फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल फॉर द सोसाइटी इन टोटल. So I'll request everyone to join the palms. We'll end with the Shanti mantra. अगर आप बोल सकें तो मेरे पीछे आप फॉलो कीजिए, या और यू कैन जस्ट कीप योर आईज क्लोज्ड. ओम
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. The few beings again slowly open your eyes. Thank you. Thank you, Sujata madam. Thank you. Thank you, Thank you Sumita. all.